Good morning, boys and girls. So, for tense is concerned, we have understood now present simple tense, it is formation and usage, and then we did present continuous tense and also present perfect tense, where we have seen how to form these tenses, and at the same time we came to know its usage. Today, let us try to understand present perfect continuous tense, and we will try to see its formation and its usage as well. Because what happens sometimes it is sometimes confusing and students get confused. Therefore, I request all of you to concentrate fully on it and try to differentiate the tenses and their usage. Okay, now see this. This is displayed on your screen, present perfect continuous tense. Now see these two sentences. He has been sleeping for 5 hours and is still sleeping. He has been sleeping. First of all, if you talk of present perfect tense, we are using has and have auxiliaries, and then we use v5 form of the verb. If you see has, this is used with third person singular, and then you have been here. Been, if you see the word been, it is again v5 form of the verb, and then you have continuous form of the verb, what is normally called progressive form of the verb, right? That is the word sleeping. That's why the construction is he has been sleeping for 5 hours. The idea is the person is sleeping for 5 hours but is still sleeping. He has not awake now, right? That is the first sentence. See the another sentence. They have been building the bridge for several months. In other words, the bridge has not been completed. The process is still going on, right? I believe now you have understood. Here you have they is considered to be your subject, and then you have, which is auxiliary, that is used with this subject, what's called plural third form of the verb, and then you have plural subject, and then you have been. Been is v5 form of the verb, and building is considered to be the continuous or the progressive form of the verb. Therefore, the construction is they have been building the bridge for several months. In other words, it simply means the bridge, the process of construction of the bridge is still on, and the bridge has not been completed yet, right? That is the construction. Now let us try to understand the formation, how to form affirmative sentences, negative sentences, then you have interrogative and negative interrogative sentences, all the four sentences. Let us see first the formation. Now dear students, first of all, we are using the subject, uh, excluding what's called the imperative form of the verb, imperative sentences. When you talk of imperative sentences, there you have sometimes different procedure. But if you talk of other sentences as well, you have using subject first, then you are using have and has been, have been or has been. That is used in present perfect continuous tenses, have been or has been. And then we are using v4. By v4 I simply mean ing form of the verb plus rest of the sentence, whatever it is considered to be affirmative sentence, right? Now subject is used, then have and has been is used. It is used because according to the situation, whether the subject is singular or plural, whatever it is. Normally what you have to remember that whenever you are using the has been, it is used with third person singular. That is considered to be, you have third person singular like he, she, or you have it, or it can be sometimes the name of the person. For example, let us suppose Aftab, let us suppose Fatima. In these subjects you are using has. For example, Aftab has been writing a letter, right?
She has been writing a letter since morning. In other words, she has not completed it yet, right? ये वो वाली action है. Okay. Now this is affirmative case. Here see again how to make negative. Negative very easy to understand. You are using simply not with auxiliaries. And by auxiliaries I simply mean have and has. Now see the structure. See sentence number 2. You have subject first, then you are using have or oblique you are using has, and then obviously what's called not, then you are using been. That means uh, plus you are using v4 ing form of the verb or progressive form of the verb, plus you are using rest of the sentence, and the entire structure becomes present perfect continuous, but the sentence is negative. Okay, you are using subject again. I will tell you, for example, you are using she as subject, and then you will use obviously has, she has, because the subject demands that you will use has. She has not been, she has not been reading the newspaper, she has not been reading the newspaper, right? Okay, now see the interrogative structure. Have, has, obviously auxiliaries, then you are using subject, then you are using been form, and then you are using v4 progressive form of the verb, plus you are using rest of the sentence, and it becomes your interrogative sentence. For example, has he been sleeping, has he been sleeping for 5 hours, right? It will become interrogative structure, right? Now see negative interrogative, how to construct negative interrogative. Now boys and girls, you are using simply first auxiliaries have or has, and then have not or has not, right? Or hasn't, haven't, plus subject he, she, I, or can be plural forms as well. Then you are using been, and then you are using v4 form of the verb, v4 progressive form of the verb, plus whatever structure remains, right? और इस तरीके से ये बनेगा आपका क्वेश्चन, राइट? ओके, नाउ सी दिस. That means it is like this: have they, have not they, have not they, have not they been, have not they been building the bridge, have not they been building the bridge for several months, right? It becomes your negative structure. Or like this, or it is like this: have they not, have they not, have they not been constructing the bridge, right? It can be negative interrogative. Now again, here see certain sentences where you can again understand how to form affirmative sentences, negative sentences, interrogative or negative interrogative sentences. Now see all these sentences. First, she has been singing a song, she has been singing a song. Let us suppose she has been singing a song for last 10 minutes. ठीक है, 10 मिनट से वो नगमा गा रही है, लेकिन नगमा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी गा रही है. शी हैज़ बीन सिंगिंग ए सॉन्ग. ठीक है, आप 15 मिनट से काम कर रहे हैं, राइट? यू हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड फॉर लास्ट 5 मिनट्स. दैट मीन्स अभी आपने काम ख़त्म नहीं किया है, राइट? सी नेगेटिव सेंटेंस: I have not been eating a cake, I have not been eating a cake, right? It becomes negative. I के साथ have का auxiliary. Has सिर्फ यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ. By third person singular I simply mean I have just told you that it is he oblique you can say she, it जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली जो वर्ड्स थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट, मिस्टर असलम, राइट, मिस फातिमा, मिस आशा, these are the words
दैट आर कंसिडर्ड टू बी थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। इनके साथ हम हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे, और जो रेस्ट रहता है जो कुछ, उसके साथ हम हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आप आई के साथ करेंगे हैव बीन, आई हैव बीन। यू के साथ आप यूज़ करेंगे यू हैव बीन। आप दे के साथ यूज़ करेंगे दे हैव बीन। अब अगर इनकी प्लूरल फॉर्म्स देखी जाए, आई की प्लूरल फॉर्म हमारे पास वी है, वी हैव बीन वर्किंग, वी हैव बीन वर्किंग इन द रूम सिंस मॉर्निंग, राइट, या सिंस 8 AM, राइट। एक्चुअली ये जो है, एंड देन फॉर एग्जांपल यू का प्लूरल यू होगा, तो यू के साथ भी आप हैव का इस्तेमाल करेंगे, यू हैव बीन। फिर आपके पास जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, शी ही इट या कोई नाम, उनका प्लूरल दे है, तो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे दे हैव बीन। हैज़ बीन कुल मिला के सिर्फ एक जगह पे यूज़ होगा, वो होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर में। रिमेंबर हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आज की डेट में, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखना है, ताकि आगे जाके हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी एक्सरसाइज के ऊपर, वेदर वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द टेंस फुली और नॉट, राइट। इस वजह से आपको यूजेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब देखें यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके पास, हैज़ शी बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, हैज़ शी बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। चूँकि शी आपका सब्जेक्ट है, ऑब्वियसली हैज़ यूज़ होगा, चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर हम उसको कहते हैं जिसके मुतालिक बात की जाए। देखिए फर्स्ट पर्सन होता है द पर्सन स्पीकिंग, जो शख्स का बात करेगा दैट इज कंसीडर्ड टू बी फर्स्ट पर्सन, द पर्सन स्पीकिंग। हियर आई विल कंसीडर माई सेल्फ एज आई is considered to be, I am speaking with you, I am delivering lecture, I am in conversation with you. It's considered to be, ये जो होगा ये होगा द पर्सन स्पीकिंग, ये होगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। जिसके बाद सेकंड पर्सन को होगा, सेकंड पर्सन आप सभी हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, या यू आर कंसिडर्ड टू बी लिसनर। द पर्सन, व्हेन वी से द पर्सन स्पीकिंग इज फर्स्ट, इट इज कंसिडर्ड टू बी फर्स्ट पर्सन। द पर्सन स्पीकिंग टू, द पर्सन स्पीकिंग टू हो गए आप लोग जिनके साथ बात हो रही है, और थर्ड पर्सन बात जिसके मुतल्लिक बात की जाए, द पर्सन स्पीकिंग अबाउट, राइट, इट्स कंसिडर्ड टू बी थर्ड पर्सन। जैसे हैज़ शी है, ही है, या इट है, या कोई नाम है, ठीक है। आप अशरफ के मुतल्लिक बात करते हैं, जिसके बाद आप अशरफ के मुतल्लिक बात करते हैं, तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द पर्सन स्पीकिंग अबाउट। यह बनेगा आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। यहाँ पर जो आपके पास केस है सेंटेंस थर्ड में, हैज़ शी बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, क्योंकि हम शी के मुतल्लिक बात कर रहे हैं, शी कोई भी हो सकता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इट इज़ कंसिडर्ड टू बी, ये जो शी है ये वसुंधरा है, हैज़ वसुंधरा बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, यू अंडरस्टैंड। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर आपका सब्जेक्ट रहा, और कंस्ट्रक्शन आपकी यही रहेगी, हैज़ शी बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। अब देखिए आगे, हैवेंट आई बीन प्लेइंग हॉकी। यहाँ पे देखो आप हैवेंट, जो हैव है, हैवेंट, हैव इस वजह से यूज़ हुआ बिकॉज द सब्जेक्ट इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई जो आपके पास यूज़ हुआ है। हैवेंट आई बीन प्लेइंग हॉकी। अब देखिए, या इसका कंस्ट्रक्शन ऐसे भी बनेगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव दूसरा सेंटेंस जो हमने बनाया है, जो परमिसिबल है, हैव बॉयज नॉट बीन प्लेइंग हॉकी, हैव बॉयज नॉट बीन प्लेइंग हॉकी, राइट। आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, हैवेंट बॉयज बीन प्लेइंग हॉकी, हैव बॉयज नॉट बीन प्लेइंग हॉकी। बोथ द केसेस आर परमिसिबल, दोनों से हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है। अब आइए, आई बिलीव कि ये आपकी फॉर्मेशन है, एंड आई एम क्वाइट श्योर आपको एक बात करनी है, कुछ वर्ब्स को लेके थोड़ी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, ताकि आपकी कंस्ट्रक्शन अच्छी तरीके से उसमें किसी तरीके की दिक्कत ना आए, कोई मुश्किल उसमें पेश ना आए, ठीक है। ओके, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूजेज विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने इसमें ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए आपके पास दो सेंटेंस जिनका तज़किरा हम ऊपर टॉप पे भी कर चुके हैं। ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours, इसका मतलब क्या होगा, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours, वो पिछले 5 घंटों से सो रहा है। उसका मतलब है अभी वो जागा नहीं है, मतलब यह है कि शख्स जो है वो अभी भी बिस्तर पर लेटा हुआ है, वो अभी भी सो रहा है, वो अभी जागा नहीं है, ठीक है। और इस जगह पर
ऐसी हालतों में जो काम कंटिन्यू किया जाए और काम अभी इख्तिताम न हुआ हो, एक्शन अभी कंप्लीट न हुई हो, बल्कि एक्शन इन प्रोग्रेस हो, ऐसी हालत में, और एक्शन कभी कहीं ना कहीं पास्ट रीसेंट पास्ट से शुरू होती हो और अभी वो इख्तिताम नहीं हुई है, ठीक है। तो ऐसी हालत में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। जिस वक्त एक्शन रीसेंट पास्ट से शुरू हो जाए या बाज़ अवक़ात पास्ट से भी शुरू हो जाए लेकिन एक्शन अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो उस हालत में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो रोड है, रोड पिछले 3 महीने से कंस्ट्रक्ट हो रहा है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। उसका मतलब ये होगा कि इस स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे। जिस वक्त आप 3 महीने की बात करेंगे तो ये ऑब्वियसली पास्ट का एक्शन होगा, लेकिन पास्ट से एक्शन कंटिन्यू जारी है, अभी तक रोड मुकम्मल नहीं हुआ है, एक्शन अभी कंटिन्यू चल रही है, अभी एंड नहीं हुई है। ऐसी हालत में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को यूज़ करते हैं। हैज़ ही बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, आगे देखिए आप दूसरा सेंटेंस, दे हैव बीन बिल्डिंग ए ब्रिज फॉर सेवरल मंथ्स, वो काफ़ी टाइम से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ब्रिज को तैयार कर रहे हैं, लेकिन ब्रिज अभी तैयार नहीं हुआ है, एक्शन आपकी ख़त्म नहीं हुई है। तो ऐसी हालत में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप जो आपके सामने हाईलाइट किया गया है, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन विच बिगैन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। एक ऐसी एक्शन जो कहीं ना कहीं पास्ट में शुरू हुई है और अभी चालू है, अभी ख़त्म नहीं हुई है, ऐसी हालत में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर एक सेंटेंस आपके पास है, वाई आर योर क्लोथ सो वेट, ठीक है। वाई आर योर क्लोथ सो वेट, आपके कपड़े गीले क्यों हैं। आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन, इस वजह से गीले हैं। आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बाग को पानी दे रहा हूँ, मैं फूलों को पानी दे रहा हूँ, ठीक है। दे रहा है, ये शख्स जो है ये अभी भी बाग को पानी दे रहा है, इस वजह से इसके जो क्लोथ्स हैं वो इतने गीले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस ये दे चुका है, अगर ये दे चुका होता तब ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। ये अभी भी दे रहा है, मतलब ये है। दिस टेंस इज ऑल्सो समटाइम्स यूज्ड फॉर एन एक्शन ऑलरेडी फिनिश्ड, कभी कभार एक एक्शन जो ख़त्म हो चुकी होती है, जैसे यहाँ पर सूरत हाल कभी ऐसे भी हम महसूस करते हैं कि एक्शन जिसको कंप्लीट हो चुकी है उस जगह भी हम इसको यूज़ करते हैं। इन सच केसेस द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्टिविटी, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी, द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्टिविटी इज़ एम्फसाइज्ड एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग, ठीक है। और ऐसी हालत में क्या होता है, कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटी इज़ एम्फसाइज्ड, जैसे यहाँ पर कपड़े गीले होने का मामला है, कपड़े, आपके कपड़े क्यों इतने गीले हैं। तो ये चीज़ हमको महसूस होती है ये कि कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटी जो है वो उसके ऊपर जोर दिया गया है, ठीक है। तो ऐसी हालत में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को यूज़ करते हैं जहाँ पर कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटी पे जोर दिया जाए और अंदाज़ा ये हो कि ये काम अभी भी जारी है, ठीक है। तो ऐसी हालत में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को यूज़ करते हैं। उसका मतलब यह है कि आप बच्चों को एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को हम यूज़ करते हैं जब एक्शन पास्ट में कहीं शुरू हुई हो या रिसेंट पास्ट में शुरू हुई हो और वो एक्शन अभी कंटिन्यू चल रही हो। अभी आपने एक किताब कोई ले ली है, नावल ले ली है आपने, लेट अस सपोज सन्स एंड लवर्स, डी.एच. लॉरेंस की नावल ली है, वो आप पिछले 3 महीनों से पढ़ रहे हैं लेकिन अभी आपने किताब को ख़त्म नहीं किया है, ठीक है। तो ऐसी हालत में क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सहारा लिया जाएगा। आप ऐसे बताएंगे, आई हैव बीन रीडिंग sons and lovers for 3 months, right। इट इंडिकेट्स कि अभी एक्शन ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी आप किताब पढ़ रहे हैं। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड नाउ हाउ टू यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड ऑल्सो it's it's a formation, how to form the structure. I'm leaving you here, we'll meet you in the next lecture. Till then, goodbye, may God bless you.